Types of files. एक सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइल मैनेजमेंट, जिससे बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है ना। तो टुडे विल डिस्कस टॉप सेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन अंडर फाइल मैनेजमेंट। तो इससे रिलेटेड, फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड, लाइक फाइल सिस्टम, व्हाट इज़ फाइल सिस्टम, व्हाट इज़ द ऑपरेशंस रिलेटेड टू फाइल। तो एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। बेसिकली जो फाइल मैनेजमेंट आप डेटाबेस में पढ़ते हैं, तो आई थिंक दैट कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी आपका कंटेंट नहीं होगा, सब्जेक्ट। No, sir. हाँ, तो DBMS वी डील द पर्टिकुलर सेक्शन। तो DBMS, अंडर DBMS वी डिस्कस द फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। बट इन फंडामेंटल आई थिंक दैट कि यू ऑलरेडी हैव द टाइप्स ऑफ फाइल आपने पढ़ा होगा। At the same time, you can discuss this topic in SAD also, various types of files. So types of files में you already have a concept of sequential and random or direct file organization. I think this concept is already discussed in the fundamental part, because when we discuss the organization on the basis of input output devices, तो आउटपुट डिवाइसेस के केस में आप सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और रैंडम ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ फाइल्स यहाँ जो है ये किस बेसिस पर है, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। यानी जो भी डेटा आपके फाइल के ऊपर है उसको आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, सीक्वेंशियल मैनर में, रैंडम। तो एक्सेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका है सीक्वेंशियल एक्सेसिंग और डायरेक्ट और रैंडम एक्सेसिंग। So there are two more to access file. Either you can access the file in a sequential manner or random manner, direct manner. Now it depends on the device. If your device like magnetic tape के केस में आप पढ़े होंगे, in magnetic tape the data is arranged in a sequential manner, so we can access the content of magnetic tape in a sequential manner. But in case of hard disk, SSD, or you can say magnetic disk, we can access the contents in a random or डायरेक्ट मैनर। तो रैंडमली एक्सेसिंग करते हैं या डायरेक्ट एक्सेसिंग किसी भी कंटेंट का करते हैं। तो यू ऑलरेडी हैव ए डिफिनेशन ऑफ फाइल, यानी हाउ यू कैन डिफाइन द फाइल, इफ यू हैव टू डिफाइन द फाइल, एनीवन? File is a collection of relative Or data. number of times you are using this term file whenever Yes. you are making a program in C, C++, Python, ठीक है ना, Java, any programming language, or you are writing code or writing using any editor like Notepad, Word, Excel में अगर कोई काम कर रहे हैं, तो for accessing that file in future you need to think about the attributes, that is the name of the file. तो फाइल का नाम सबसे पहले आप यूज करते हैं। तो once you have a name of the file, then that file is recognized by that name, and whenever you need to access that file, then why you want to access the file, because that file contains certain records, or you can say information, you know. And where the file is stored, there is one paper you have to study. Yes. I think that in fourth semester, yes, data and file structure. In fourth semester, there is a paper, data and file structure, and in fourth semester there is a paper RDBMS. Relational database. तो ये दो पेपर है। RDBMS deals the information, Relation between the databases. हाँ। तो RDBMS हम लोग पढ़ते हैं। तो RDBMS में we are organizing or arranging the data in tabular form. Here we are using to arrange the data with a specific structure. That structure may be your stack, है ना, queue. So the same structure is used in OS also, operating system.
when we discuss the operating system, then the various file structure is there to manage the process or to organize the process, like a stack, queue. So you already have an idea about the under process management. Your process is allocating in the main memory through the data structure queue. यानी queue is the data structure which works over there. तो हम लोग वहां बोलते हैं FIFO queue, यानी कि under process management a FIFO queue is maintained and your process is allocated over there in a FIFO manner, first in first out manner. Same thing occur inside the computer system and a CPU. There is a stack. So a stack is a specific register. It is also a particular memory cell on which temporarily data is allocated. तो आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां भी स्टैक का यूज करते हैं. सब रूटीन या फंक्शन जब लिखते हैं तो एक प्रोग्राम में वेरियस सेगमेंट्स होता है, तो उस वेरियस सेगमेंट्स को आपका जो है स्टैक होल्ड करता है. यानी कि स्टैक इज रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग ऑल द सेगमेंट्स रिलेटेड टू योर प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम में जैसे सेगमेंटेशन डिस्कस किए, योर प्रोग्राम कंटेन्स द मेन प्रोग्राम, ठीक है ना, एंड सेवरल प्रोसीजर्स आर देयर लाइक योर procedure 1, procedure 2, ठीक है ना. The same manner there is a stack, ठीक है ना, which maintains all the particular sections or segment of the program. So you can declare or define the program file in the manner कि it is the container of ठीक है ना of collective information about related fields. In other words, it is a collection of records, you can say. It is a collection of records. तो कंटेनर ऑफ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड फील्ड का मतलब है जिस तरह का आप, जैसे अगर सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो योर फाइल इज द कंटेनर ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड द सेगमेंट रिलेटेड टू दैट सी कंपाइलर, ठीक है ना. अगर आप वर्ड का फाइल लिख रहे हैं तो वर्ड, तो अब यहाँ वर्ड और एक्सेल और सी का प्रोग्राम हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर फाइल का स्पेसिफिक आपका एट्रीब्यूट्स क्या है, तो एट्रीब्यूट्स केवल नेम नहीं है. द एक्सटेंशन इज आल्सो यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर फाइल, यानी कि फाइल किस तरह का फाइल है. तो आप बोलते हैं स्प्रेडशीट का फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, पीडीएफ फाइल है, ठीक है ना. तो ये पीडीएफ, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट या फाइल है या C++ का फाइल है, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज, हाउ योर ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज इट by the specific extension. तो whenever you are searching a particular file, then आपके पास दो चीज होता है, या तो आपके पास फाइल नेम होना चाहिए और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन. तो this is the name of the file name dot and the extension of the particular file. Suppose if you have no details about this, then in DOS how you can search, how you can find out asterisk. So asterisk is for any file name having, and this second asterisk is for any extension. So any file name having any extension is retrieved from the particular system. So if similarly आप different way में आप DOS command यूज किए हैं, यानी कि अगर आपको फर्स्ट लेटर पता है किसी फाइल का, तो you can place that first letter also. Suppose first letter is F, then F asterisk. After first letter you have no idea what types of character it contains. And then also you have no idea about the extension. So this is the first way. Second way, you have the name, starting letter आपको पता है, then you can easily find out. Otherwise ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइल का नाम नहीं पता है बट आपको एक्सटेंशन पता है, सी का फाइल है, so you can mention the extension and search the particular contents. So these are the particular section through which you can find out the particular file. तो पहला चीज तो ये है. दूसरा चीज क्या है, where your file is stored. Anyone? Why we discuss file management? We discuss file management in context of disk management, because your file is stored somewhere in the permanently resident area.
तो ये परमानेंटली रेसिडेंट एरिया क्या है आपका? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सर। it is resided under secondary storage device। यानी अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, आपका कोई भी फाइल होगा वो सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। लेकिन ये जो भी फाइल है वो किसी फॉर्म में स्टोर हो सकता है, आपका टेबुलर फॉर्म में हो सकता है या किस नॉन टेबुलर फॉर्म में भी आपका फाइल स्टोर हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस तरह का फाइल आप रख रहे हैं अपने हार्ड डिस्क में। नाउ अब ये भी एक पार्ट है कि विच काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए, काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय फाइल में भी क्या क्या हो सकता है, किस तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है। आपका फाइल जैसे नोटपैड में कुछ लिख रहे हैं, तो नोटपैड का बाय डिफॉल्ट आपका इंफॉर्मेशन किस तरह का होगा? टेक्स्ट फॉर्म में होगा। तो आपका काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय फाइल में भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, मे बी टेक्स्ट, मे बी बाइनरी। हाँ टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है ना, इमेज हो सकता है, लाइक आप फोटो एडिटर कोई आप यूज कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन जेपीजी, अगेन वहां पर भी एक्सटेंशन काम करता है। इमेज हो सकता है, ऑडियो फाइल हो सकता है, वीडियो फाइल हो सकता है, ठीक है ना। जब मिक्सचर ऑफ होता है ऑडियो वीडियो, देन डेटाबेस टेबल्स हो सकता है आपका फाइल, ठीक है ना। योर फाइल में बी एनी मशीन कोड्स, why I discuss this thing, machine codes etc, because ऑब्जेक्ट कोड के लिए भी आप जब सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका ओबीजे फाइल बनता है, यस सर। ना। आप जब सी का प्रोग्राम एक लिखते हैं तो डॉट सी से सेव करते हैं, लेकिन इस डॉट सी से सेव करने के अलावा इंटरनली कितना एक्सटेंशन आपका क्रिएट होता है? 4 या 5। हाँ, तो एक डॉट सी तो आपने फाइल का नाम सेट कर दिया एक्सटेंशन जिससे रिकॉग्नाइज होगा आपका फाइल। देन इसका एक बैकअप फाइल बनता है डॉट बैक, इसका जैसे ही कंपाइलेशन होता है यानी एग्जीक्यूट होता है तो इसका एक ओबीजे फाइल बनता है, ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल आपका मशीन कोड्स यानी 01 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। और क्या फाइल बनता है? एक फाइल बनता है इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी आपके प्रोग्राम का EXE, यानी आप जो प्रोग्राम लिखे उसको अगर केवल एग्जीक्यूटेबल फाइल उसका यूज करना है, सोर्स कोड नहीं यूज करना है, तो यू कैन शेयर दिस एग्जीक्यूटेबल फाइल टू द यूजर। So user have no details about the source code, only user access or execute your code। Suppose if you make any application like calculator या कोई ऐसा application बना रहे हैं and you don't want to share the source code, so you just share the exe file of that particular code and the जो user जो होगा वो केवल exe से आपका execute करेगा प्रोग्राम। यूजर को आप शेयर नहीं करना चाहते हैं सोर्स कोड, तो वहां पर शेयरिंग आपका जो है वो आप प्रिविलेज स्टॉप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा प्रोग्राम का होगा, तो अब ये फाइल भी आपका क्या है, हैंडल बाय द प्रोसेस एज ए प्रोसेस, तो प्रोसेस मैनेजमेंट का भी ये पार्ट है। तो यहाँ पर आपका जो है इंडिपेंडेंट यानी आपका जो इंफॉर्मेशन है फाइल के फॉर्म में स्टोर्ड है वो अलग अलग फॉर्म में यूज होगा, यानी एक प्रोसेस के फॉर्म में भी यूज होगा इंटरनली सिस्टम में, यूजर भी इसको फाइल को यूज करेगा, ठीक है ना। तो there is another important factor related to the file, you can mention it, what are the various entity for the particular process, user and machine, ठीक है ना। तो आपका जो इंफॉर्मेशन फाइल में स्टोर्ड होगा, ठीक है ना, when the file is related to the process, user and machines, ठीक है ना। तो प्रोसेस आपका फाइल प्रोसेस भी बनता है, ठीक है ना, यूजर के थ्रू भी यूज होता है जब आप उस फाइल को यूज करते हैं इंटरेक्टिव, आप जब फाइल को कोई यूज कर रहा होता है तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मशीन में वो फाइल कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो आपका जो है प्रोसेस के फॉर्म में वो कब रहेगा, व्हेनेवर प्रोसेस का क्या रोल है,
यानी कि when the file is related to the process, when it is related to the user and when it is related to the machines. Anyone? प्रोसेस पहले बताइए, फाइल का रिलेशन प्रोसेस से कैसे होगा, यूजर से कैसे होगा और मशीन से कैसे होगा? सर प्रोसेस जब सर यूजर रिक्वेस्ट करेगा किसी प्रोग्राम को सर रन करवाने के हाँ, लिए तो सर प्रोसेस का secondary- मतलब होगा क्योंकि आपको पर्टिकुलर सिस्टम कॉल्स को यूज करना होगा, फाइल को क्रिएट करना होगा, ठीक है ना, और फाइल को जब टर्मिनेट करना होगा तो प्रोसेस के अंदर में काम करेगा ये Yes, sir. प्रोसेस से रिलेटेड, यानी प्रोसेस कैसे फाइल को हैंडल करेगा, टू गेट, ठीक है ना, टू क्रिएट अ फाइल एंड To टर्मिनेट, terminate. Yes, sir. ठीक है ना। तो फाइल का क्रिएशन, यू कैन मेंशन हियर क्रिएशन ऑफ फाइल और फाइल क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल, ठीक है ना। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फाइल कैसे कोरिलेट करेगा? सर डिलीशन डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, परमिशन दे सकते यूजर में जैसे अगर GUI मोड में हम लोग बात कर रहे हैं तो GUI मोड में देयर इज ए प्रिविलेज सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, हैं। Yes, sir. along with administrator, guest user is also get privilege to access the particular file. If the administrator allow, अगर इस एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करता है तो यूजर आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी है और गेस्ट यूजर जितना भी आपका है वो भी यूज कर सकता है आपके फाइल को। तो यहाँ पर ये प्रिविलेज कैसे सेट करेगा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यूजर, दैट इज हम बताए थे एट्रीब्यूट्स ऑनर ऑफ फाइल, ठीक है ना, ऑनर ऑफ फाइल, ठीक है ना, ऑनर ग्रुप और अदर। हाँ, सिस्टम लॉग्स ऑफ, ठीक है ना, ठीक है ना, और ऑन। तो यूजर अगर सिस्टम के बेसिस पर लॉग ऑन और ऑफ करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रिविलेज जिस फाइल का दिया होगा गेस्ट यूजर को वही फाइल गेस्ट यूजर यूज कर पाएगा, अदरवाइज कोई दूसरा फाइल वो यूज नहीं कर पाएगा। और व्हाट अबाउट द मशीन्स? मशीन्स का फाइल से रिलेशन कैसे होगा? स्टोरेज पर्पस, स्टोरिंग के लिए। नहीं, वो तो स्टोरेज पर्पस तो आपका मशीन के अंदर और सेकेंडरी स्टोरेज है वो सारा है। तो मशीन आपका ये फाइल तभी एक्टिव होगा ना जब व्हेन मशीन इज यानी स्विच ऑफ और ऑन। मशीन से रिलेटेड क्या होगा? स्विच ऑन ऑफ होगा तो आपका कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगा, ना प्रोसेस काम करेगा ना यूजर एक्टिविटी होगा, यानी स्विच ऑन और ऑफ दैट इज रिलेटेड टू द मशीन्स। So once it is on, then after process is generated, user is making the particular file interactive. Otherwise, there is no privilege to the user to access the particular content. Now, another factor we discussed under file, that is the file system. Okay. अब फाइल सिस्टम में आपका जो है फाइल मैनेजर, जो भी हम लोग बोलते हैं रिसोर्स एलोकेटर, ठीक है ना, जो मैनेज करेगा फाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइल सिस्टम। तो ये आपका क्या क्या प्रोवाइड करेगा? सबसे पहले फाइल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच डील्स द फाइल्स सिस्टम और फाइल मैनेजर। देखें नेक्स्ट, अब ये फाइल सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका फाइल को मैनेज कैसे किया जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स आर अंडर कंसर्न ऑफ फाइल सिस्टम। So through file system, operating system get privilege to managing the files. तो ये एज ए रिसोर्स फाइल मैनेजमेंट के अंदर ये रिसोर्स का काम करेगा। ठीक है, now it will also provide or facilitate to create, and ये all are the part of file system.
तो इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू, जब सिस्टम कॉल्स हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर ये सारी बातें हम लोग करते हैं सिस्टम कॉल्स के लिए। तो फाइल एज ए सिस्टम कॉल, फाइल का क्या क्या एट्रीब्यूट्स, गेट एट्रीब्यूट्स, सेट एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो क्रिएट एंड डिलीट फाइल्स, ठीक है ना। तो फाइल सिस्टम में जैसे आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम करते हैं, तो कोई भी फाइल को किसी पर्टिकुलर से लोकेशन पर अगर रखे हैं तो आप क्रिएट और डिलीट के लिए पॉपअप मेनू आपका होता है, आप राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज फाइल के ऊपर करते हैं। तो रीड एंड राइट, ठीक है ना, कंटेंट्स ऑफ फाइल्स दैट इज रिलेटेड टू द फाइल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायरेक्टरीज, that is folder, organization of directories, it is also directories, is the part of file system. Then और क्या हो सकता है, efficient access to the contents stored in files, जो भी आपका इंफॉर्मेशन या कंटेंट्स है उसको एक्सेस करने के लिए एफिशिएंट एक्सेसिंग प्रिविलेज सेट करना। देन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है फाइल का, मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी स्पेस, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी स्पेस ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर आपका जो भी है, जब आपका फाइल क्रिएट होगा तो कितना स्पेस लेगा, ठीक है ना, डिवाइस व्हेन द फाइल्स आर क्रिएटेड, मॉडिफाइड एंड या और डिलीटेड, मॉडिफाइड और डिलीटेड। तो ये तीनों ही प्रक्रिया में आपका मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी स्पेस होता है, क्योंकि डिलीट होगा तो स्पेस आपका लोकेट होगा, स्पेस फ्री होगा, क्रिएट होगा तो मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई होगा, मॉडिफाइड होगा तो रिसाइजिंग होगा, साइज आपका मॉडिफाई होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो हम लोग प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इट विल प्रोवाइड्स, दैट इज द फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स। अब फाइल सिस्टम आप पढ़े होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, NTFS पढ़े हैं ना, हार्डवेयर नेटवर्किंग का क्लास में पढ़े होंगे ना फाइल सिस्टम के बारे में, कितने तरह का, कैसे कितने तरह का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम आपका मैनेज करता है। फाइल को मैनेज करने के लिए जो आप यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो वेरी करता है। यस लार्ज फाइल नहीं पढ़े, अच्छा इंस्टॉलेशन के समय में आप देखते हैं ना इंस्टॉलेशन, यस सर पढ़े हैं, मोड ऑफ इंस्टॉलेशन, FAT32 सर। हाँ ये यस FAT32 NTFS है ना, तो दैट इज द वेरियस, वो आपका एक्चुअली उसकी इसके थ्रू ही ये सारा जो है फाइल मैनेज होता है, ठीक है। तो प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन mechanism to allow users to administrate how other users can access the information in files, ठीक है। So that is relative works of the particular file system. Then we already discussed about the file naming. There is a next segment, file naming. तो फाइल नेमिंग में हम लोग वो सारे तरह का एक्सटेंशन भी देखते हैं जो किसी फाइल को सेव करने के लिए यूज करते हैं। तो हाउ द पर्टिकुलर फाइल इज रिकॉग्नाइज फ्रॉम द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपका फाइल किस तरह का है। तो इसी बेसिकली हाउ द फाइल्स आर स्टोर्ड
इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क, कैसे स्टोर करेगा, किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो फाइल हैंडलिंग में भी आप पढ़ते हैं टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, ठीक है ना। तो हाँ, तो बैक यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपका स्टोर हो रहा है वो इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर आपको जरूरत होगा तो उसको वहां से रिट्रीवल भी आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए वेरियस जो फाइल नेमिंग आपका जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें दो ही चीज अभी जो हम लोग देखे, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि फाइल का नाम एंड इट्स एक्सटेंशन, है ना। बेसिकली फाइल नेमिंग का कॉन्सेप्ट ही है कि आपका फाइल स्टोर्ड किस नाम से होगा। तो इसमें दो फैक्टर है, फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, जिसको हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, ठीक है ना। अब ये एक्सटेंशन, फाइल नेम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ये फाइल नेम के लिए आप जो आइडेंटिफायर के लिए रूल पढ़े हैं वो सारे रूल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं फाइल नेम के लिए, ठीक है ना। आपका कैरेक्टर बेस यानी पहला कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन बेस आपका जो है डिफरेंशिएट करेगा ऑर्गेनाइजेशन डेटा को, ऑर्गेनाइजेशन को जो आपका मेन डिफरेंशिएट कौन करता है, दैट इज द एक्सटेंशन। तो वी हैव ए लॉट ऑफ एक्सटेंशन, अभी कुछ एक्सटेंशन तो आप यूज कर ही रहे हैं एंड देयर इज सर्टेन स्पेसिफिक मीनिंग फॉर दैट एक्सटेंशन। once you have that extension for the particular file, then you recognize that file on the basis of that extension. like आप ये यूज कर रहे हैं .txt, तो .txt को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इट इज जनरल टेक्स्ट फाइल, इट इज जनरल टेक्स्ट फाइल। now you are already use C language, आप पढ़ रहे हैं .c, तो it is the C object program और source program, source program, C source program. yes, source code. If the object program you have to write, then .obj is the object program, C object program. Then back, .back, that is the backup file, कोई भी फाइल का। .obj ये तो आप अभी यूज कर ही रहे होंगे, जो प्रोग्राम बना रहे हो वहां देख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट फाइल, तो ऑब्जेक्ट फाइल। देन देयर इज ए exe, अभी हम लोग देखें exe फाइल, दैट इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल, executable file. Then some of the example we share here, .gif, .gif, that is graphical interchange format, graphical interchange format, हाँ। तो ये भी आपका फाइल है, ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, सी सोर्स प्रोग्राम फाइल ही है आपका जो फाइल है। देन .gif, देन यू जस्ट यूज .html आप यूज कर रहे होंगे, .html दैट इज www hypertext markup language, hypertext markup language file which will run on the browser, है ना। So you can save it by using the text editor. So .jpg, that is the joint photographic expert group, joint photograph, jpg sir, jpeg, yes, और jpeg भी यूज करते हैं, तो joint photographic expert group, expert group, photo picture, yes sir. Joint picture, somewhere you see the picture also in place of photo, है ना। तो joint picture, then .mp3, mp4, various extension we have, png, है ना। mp3 is the media player layer 3, ठीक है ना। mp layer 3, layer 4, तो इस तरह का वेरियस एक्सटेंशन। .zip फाइल भी यूज करते हैं, पोस्ट आपका जो है आर्चिव करने के लिए कंप्रेस फाइल को यूज करते हैं। तो ऑल आर द नेमिंग कन्वेंशन वी आर यूजिंग फॉर द पर्टिकुलर फाइल। नाउ नेक्स्ट सेक्शन अंडर फाइल इज एट्रीब्यूट्स, दैट इज द फाइल एट्रीब्यूट, जो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास
बट एक सीक्वेंस से नहीं किए थे, जस्ट मेक दैट सीक्वेंस। तो फाइल एट्रीब्यूट्स, बेसिकली एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एनीवन? फाइल से रिलेटेड पाइथन में इंफॉर्मेशन। आपने क्लास यूज किया होगा, यस सर। तो क्लास में एट्रीब्यूट्स का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर क्लास? सपोज इफ यू give the name of the class student, यस सर। then if student is the class name, what is the attributes for this student you want to set? सर जस्ट लाइक बुक एंड Yes, anyone? And at the same time, then it is very much easy to you, student under, ये अंडर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिस पर, और अंडर RDBMS, ठीक है ना? इफ स्टूडेंट इज द टेबल, और यू कैन से एंटिटी, नेम ऑफ द एंटिटी, हियर द स्टूडेंट इज द नेम ऑफ क्लास, ठीक है? तो इफ अंडर ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिकॉज पाइथन यू ऑलरेडी स्टडीड, तो स्टूडेंट अगर क्लास है तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स यू वांट टू सेट फॉर द क्लास? नेम, रोल, and if the student is a table name entity, table name है, then what are the fields here? Actually we are using fields terminology in case of tabular form of the data, or attributes in case of this. So attributes and fields are same, attributes और field आपका सेम ही होता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि स्टूडेंट अगर क्लास है तो एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएगा? स्टूडेंट का आईडी, रोल, स्टूडेंट का नाम, कोर्स जिसमें पढ़ता है, यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा। तो you just set it as a attributes to recognize any student. Whenever you declare object for this student class, then you can set the properties of that object on the basis of these attributes. यानी कि if once the Sasi Kumar is the student, so you are the object, all the students sitting inside this classroom are the object for this class, ठीक है ना? तो your class name is BCAK second sem, and all the students participating in this current meeting is the object for this class. Now see, in your profile there is some details given to you, mentioned by you, like your roll number, ID, name, course, and the university. What are these? These are the attributes which represent you. ये attributes है जो आपको represent कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, क्लास का एट्रीब्यूट्स आपने किया, यहाँ पर अभी जो है इस क्लास का एट्रीब्यूट्स आपका रोल नंबर है, आईडी है, नेम है, कोर्स है और यूनिवर्सिटी है। तो अगर इसी को हम टेबुलर फॉर्म में रखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये रोल नंबर, आईडी, नेम, कोर्स और यूनिवर्सिटी, दीज बिकम द फील्ड्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा, अलग अलग फील्ड होगा इस टेबल में, स्टूडेंट इज द टेबल नेम, एंड हियर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट वी हैव अ क्लास which consists of certain attributes as a data member, and that attributes is accessed through the member function of that class, and that class is instances, यानी कि class behavior of the class is accessed through the object of the same class. तो आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे शशि कुमार इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, तो शशि कुमार के लिए ये सारे एट्रीब्यूट्स वर्क करेंगे। तो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि फाइल एट्रीब्यूट्स क्यों जरूरत है, क्यों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना? तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे? व्हाट इज फाइल एट्रीब्यूट्स? आपका जो भी डिटेल्स है ये क्या कर रहा है, आपके प्रॉपर्टीज को बता रहा है ना? यस सर। यानी इट contain all detail related. हाँ, it represents the properties of the files, ठीक है ना? किसी भी फाइल का प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना, ये आपका रिप्रेजेंट करता है। एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फाइल। तो मेन एट्रीब्यूट्स क्या है आपका? मेन file attributes, we just list out that particular attributes. So one by one, first what is, सबसे पहला आपका क्या होगा? नेम। आफ्टर नेम फाइल का नाम हो गया, उसके बाद
Next, But what do you yes, think? Identifier, identity. आइडेंटिफायर एंड नेम में क्या डिफरेंस है? नाम जो आप यूज करेंगे, ठीक है ना, तो उसका साइज क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है ना, नेम का कैरेक्टर कितना लेंगे, ऑल आर सेट बाय द पर्टिकुलर आइडेंटिफायर। नाम तो आप एक सेलेक्ट कर लेंगे, ये नाम आप लेना है आपको। देन टाइप, Yes, यानी कि किस तरह का फाइल है, न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, क्या है आपका फाइल, किस तरह का है। देन वेयर यू वांट टू लोकेट इट, दैट इज द लोकेशन, ठीक है ना। अब ये आप इलेबरेट कर लेंगे खुद से, इसमें बताने yes की sir. जरूरत नहीं है कि नेम क्या है, No, आइडेंटिफायर क्या है। तो नेम हो गया आइडेंटिफायर, टाइप, लोकेशन, वेयर यू वांट टू सेव ऑन द ड्राइव, ड्राइव पर कहां पर इसको सेव करेंगे आप। देन नेक्स्ट इज द साइज, साइज क्या होगा आपके फाइल का। देन whether you want to protect your file, that is the protection part, all are the attributes, ठीक है ना। कितने लोग इस यूसेज काउंट, यानी कि आप जैसे आप वेब पेज बनाते हैं तो आप अपने पेज को चाहेंगे ना कि कितने लोग आपके पेज को हिट दे रहे हैं, तो जितने लोग हिट दे रहे हैं उसको काउंट करने के लिए आप फीचर्स ऐड अप करते हैं yes अपने sir. होम पेज में। तो दैट इज द यूसेज काउंट, कितने लोग यूज किए। और नेक्स्ट यू जस्ट वांट द सेट, इतना काम हम लोग करते नहीं है लेकिन इतना प्रिविलेज है, ठीक है ना, कि डेट, कब आपका फाइल क्रिएट हुआ है, डेट, टाइम, डेट, एंड ऑनर कौन है, कौन बनाया है, किसके थ्रू बना है, यूजर आइडेंटिफिकेशन। सर परमिशन भी तो देते हैं हाँ, प्रोटेक्शन। तो प्राइवेसी के लिए आपका कॉपीराइट, आपके फाइल का ये सारा चीज फैक्टर वहां पर, ये ऑल आर द मेन फाइल एट्रीब्यूट्स। तो यू कैन एलिबरेट इट, अपने से कर सकते हैं। Yes sir. तो नेक्स्ट मॉड्यूल भी डिस्कस, दैट इज द फाइल ऑपरेशंस, जो ब्रीफ हम लोग किए थे लास्ट क्लास में। नेक्स्ट इज द फाइल ऑपरेशंस। तो अंडर फाइल ऑपरेशंस, और फाइल ऑपरेशन क्या है, बेसिकली फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन, वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट। तो इंफॉर्मेशन का जरूरत बाद में रिट्रीवल के लिए जरूरत पड़ सकता है ना। तो एज वी नो दैट, files is used to store information, ठीक है ना, which is needed to be retrieval in future, फ्यूचर में जिसको रिट्रीवल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन फाइल्स, जितना भी ऑपरेशंस है वो सारे ऑपरेशंस को करना। तो यहाँ भी हम लोग लिस्टिंग कर लेते हैं। फर्स्ट, फाइल, सबसे पहला चीज क्या है, यू हैव टू क्रिएट अ फाइल। तो क्रिएशन ऑफ फाइल, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएशन ऑफ फाइल एज ए ऑपरेशन। तो क्रिएशन इज द ऑपरेशन। देन एनी टाइम यू कैन परफॉर्म डिलीशन ऑफ फाइल, क्रिएटेड फाइल को डिलीट कर सकते हैं। देन after creation, in future whenever you want to access it, then Modify. opening of file, that is also one of the operation. When you Yes. open the file, then the file must be closed also. To closing of file, you can open the particular file for read or write operation. So read a file, reading a file, then writing a file, writing to a file, reading from a file. Okay, then in future if you want to modify, then you can append the particular file, Yes sir. appending a file, all are the operations। अब इसमें आप डिटेल्स लिख सकते हैं, क्रिएशन का मतलब आप जानते हैं क्या है, ठीक है Yes ना। sir. नेक्स्ट, देयर इज ए सीक, तो फाइल को ढूंढना पड़ता है, सीक यानी हम लोग डिस्कस किए डिस्क में सीक टाइम। तो टू रिट्रीवल ऑफ द फाइल,
certain head movement occur on the disk. So seek from where you want to open the particular file. Then there is a get attributes and set attributes. Get attributes and set attributes. So these are the various file operations, and there is also rename. Some of the operations you see on the pop-up menu whenever you right click on the particular file. ठीक है ना? तो rename of file, rename of file. अच्छा, ये क्लियर है सबको? सेट एट्रीब्यूट्स और गेट एट्रीब्यूट्स क्या होता है? What do you mean by set attributes and get attributes? Any example? Yes sir, just like file names or identifier type set करना है. जैसे कोई एग्जांपल जहां पर इसका यूज होगा ये ऑपरेशन का, जैसे किसी फाइल के कंटेंट्स को प्रिंट देना है. यस सर. तो आप बताते हैं ना किस पेज का प्रिंट देना है, इंटायर पेज का देना है, पेज नंबर, उस फाइल में पेज नंबर होगा, इंटायर पेज का प्रिंट देना है या किसी पर्टिकुलर, तो ये स्पेसिफाई करते हैं ना प्रिंट डायलॉग बॉक्स में. यस सर. So that is the related to that one. Next, there is a section file structure. ठीक है? Under file structure, we will continue Sir, this इसको next particular class section in में. next class. So we just discuss the file structure. तो file structure में your file, जैसे आप फाइल को बाइट सीक्वेंस में स्टोर रहता है आपका फाइल, at the same time the record sequence is there, यानी कि पेज 1 2 3 किसी पर्टिकुलर फाइल में कंटेंट्स है. देन अगर आपका फाइल किसी डायरेक्टरी में है, देन दैट डायरेक्टरी कंटेन्स द ट्री स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं डॉस मोड में भी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. तो कॉमन पॉसिबिलिटीज कोई भी डेटा को स्टोर करने का क्या होगा, बाइट सीक्वेंस या आपका रिकॉर्ड सीक्वेंस या ट्री स्ट्रक्चर. तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर. बाइट सीक्वेंस का मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स आपका यूज होगा. रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि फिक्स्ड लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसे एरे यूज करते हैं आप, एरे में क्या करते हैं, फिक्स्ड लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स यूज करते हैं. लिंक लिस्ट यूज करेंगे आगे जब पढ़ेंगे, तो वहां पर रिकॉर्ड सीक्वेंस के हिसाब से आपका जो नहीं होगा वहां पर स्टोर्ड होगा अकॉर्डिंग टू, यानी जैसे नेटवर्किंग का एग्जांपल ले सकते हैं. नेटवर्क फाइल जो होगा वो एज पर रिक्वायरमेंट एडअप धीरे धीरे होता चला जाएगा. ठीक है ना? और आफ्टर फाइल स्ट्रक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फाइल टाइप्स. तो फाइल टाइप्स, अंदर फाइल टाइप्स वी हैव रेगुलर फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स, कैरेक्टर टाइप्स फाइल्स, ब्लॉक स्पेशल फाइल्स. तो वेरियस फाइल्स वी हैव. ठीक है ना? तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस वन फाइल स्ट्रक्चर.